Yes, sir. Good Yes, sir. morning. Yes, Yeah, Rahul. chalo. So let me share my screen. So I think मैंने एक कोड शेयर किया था. So all of you have seen the code regarding one way and round trip. Come on, tell me yes or no. सबने देखा है वो code? How we can use that aura if and how we can go for if we are taking one way journey, return date will be disabled. सबने देखा है क्या? Yes, sir. चलो, so I'm expecting everyone to build the whole page again. कोड से आप डेवलप करो. आप मैंने उसमें 3-4 फील्ड्स डाले होंगे. यू इफ यू वांट यू कैन गो फॉर ऑल द फील्ड्स. चलो उस कोड में कुछ पूछना है, यू कैन आस्क मी आल्सो. चलो, so now we were talking about transferring a data from one component to another component. Let's take example. Here we have one component A. Here we have another component B. You can say it's a child component, parent component. You can say it's a child component and you can say it's a parent component. दो component को A भी बोल सकते हो, child parent बोल सकते हो. Fine. Now what I'm expecting here? So here we have a input field. Here we have a button. Okay. And what I'm expecting, so when I'm going to provide some value here, and when I click on the button, let's button is send. When I click on this button, this value will be transferred to another component here. यहाँ पे आपको वो transfer हो जाए. Right? तो इसके लिए हमने डिस्कस किया था theoretically that what we are going to use, we are going to use event. हम इसके लिए event use करेंगे. Event. उस event के अंदर में we are going to build a message attribute. हम क्या बनाएंगे? एक message attribute बनाएंगे. Again we are doing revising it. Message attribute बनाएंगे. Right? Inside message attribute we can pass. तो now steps क्या होगा? First point क्या होगा? Again we are going to repeat. First क्या है? Create. फर्स्ट क्या करेंगे हम? क्रिएट लेट्स टेक कंपोनेंट और सॉरी इट्स चाइल्ड कंपोनेंट. फर्स्ट क्रिएट चाइल्ड कंपोनेंट. फाइन. देन पॉइंट नंबर 2 क्रिएट इवेंट. ओके. देन पॉइंट नंबर 3 रजिस्टर इवेंट इन कंपोनेंट चाइल्ड कंपोनेंट. एंड उसके बाद हम इसको रजिस्टर करेंगे. फाइन. देन पॉइंट नंबर 4 राइट assign value to message attribute. फाइन. पॉइंट नंबर 5 जो हम फॉलो करेंगे वो क्या है? आपको इवेंट को फायर करेंगे. फायर इवेंट. जब यहां से हमने इवेंट को फायर कर दिया मतलब इवेंट विल टेक द डेटा, टेक द वैल्यू एंड विल गो आउटसाइड. उसके बाद हम जाएंगे पॉइंट नंबर 6. व्हाट? एट component. What component? You can say parent component. Then point number 7 handle event in parent component. And point number 8 what we can show message in parent component. तो ये आपके 8 स्टेप है that we have to follow. So guys, हमने जो लास्ट टाइम हमने theoretically बात की थी on all steps. Anyone has any query? किसी को कुछ पूछना है? Because now we are going to see each and everything practically. जो हमने लिखा है 8 step we are going to do practically. Everyone clear है ये? Yes or no? So whenever they are going to ask a question how we can transfer the data from one component to another component, they are not expecting about the code, they are expecting about the process. अगर ये process आपको पता है, no need to write code. वो आपसे कोड पूछेंगे ही नहीं. अगर आपने इसको बता दिया कि पहले हम चाइल्ड कॉम्पोनेंट बनाएंगे, फिर हम इवेंट क्रिएट करेंगे, उसको पहले रजिस्टर करेंगे, फिर उसको वैल्यू असाइन करेंगे, फिर उसके बाद फायर करना है मुझे इवेंट को, उसके बाद मैं दूसरा कंपोनेंट बनाऊंगा, उसमें हैंडल करूंगा और वो जो मैसेज है
जो मैं पास करना चाहता हूं दैट आई कैन शो इट नाउ. ओके एवरीवन, आगे बढ़े. यहां तक किसी कुछ पूछना है? कम ऑन. यस और नो? No, sir. No, sir. चलो चलो, स्टेप वन क्या है? क्रिएट चाइल्ड कॉम्पोनेंट. पहले हम ये चाइल्ड कॉम्पोनेंट बनाते हैं. सो फॉर क्रिएटिंग चाइल्ड कॉम्पोनेंट, लेट्स गो फॉर डेवलपर कंसोल, क्लोज ऑल दिस, एंड लेट्स ओपन आवर न्यू लाइटनिंग कॉम्पोनेंट. मैंने इसको नाम दे दिया, लेट्स टेक चाइल्ड कॉम CMP. I have taken all this interfaces, submit it. Okay. Now here I am giving a message here. Let's take here hi. Sorry, this is my child. मैंने मैसेज भी डाल देता हूँ. And this message will be in the bold. My child component. Fine. Inside that child component, what I'm expecting? I'm expecting a input field and a button. Chalo. So I can go to my library. I can provide here what? I can go to my library and I can ask, I need a code for to create input field. Fine. So I can go text input, take any of the line, okay, use it here. Provide your value what? So I can provide what? Let's provide your name is, I can provide some name or value for sending. Fine. Chalo. But then I need what? Then I need a custom button. So let me provide some break. Then I want to create a button. Let's create a button here. Here we have a button. Let's take a brand button. I have built a button. Simple. It's very simple. कुछ नहीं है. मैंने एक input field बनाया, मैंने एक button बनाया. Button name is send. Wait. ठीक है. Now let me call on the UI ताकि आपको सामने दिखे कि what we are doing here. So let's go for किस पे जाएं? Let's go for contact पे ऐड करते हैं हम. Okay, I can go on the contact and let's add it here. Edit page. Fine. So I can go to the edit page and let's add our क्या है component का नाम आपको? It's child CMP. So I can type here what? Child CMP and you are getting here. I can drag and drop it here. Right? Save it now. Activate it. So let's go for assign as org default, desktop and phone, next, save. So now it's activated and save it now. And let's go back. So जो भी मैंने component बनाया, you can see now that is visible on my UI. This is my child component and यहाँ पे मैं क्या value for sending and here we have one more button. Right? Now, next thing what I want to do, next thing I want to create event. अब मेरे पास ये UI तो बन गया. So first that is completed. This is what we have completed now. यहाँ तक किसी कुछ पूछना है? How we can create component? First one is completed. The child component we have built. Any query anyone? Come on, yes or no? It's very simple ना, 3 लाइन के कोड है. हमने एक इनपुट फील्ड लिया, राइट. नाउ इफ आई वांट टू रीड द वैल्यू, अभी जो भी यहाँ पे हम वैल्यू पास कर रहे हैं, आई वांट टू रीड इट. हाउ कैन आई रीड इट? So definitely we have to provide your value parameter for reading the value. हमने already कितनी बार पढ़ा है ये चीज. You can go for v dot something uh, value to send. Fine. And for that, let's create attribute.
Aura attribute name will be, I can provide here value to send, and then you have to provide type will be, let's take it, it's a string. String. Save it. फाइन. सो वॉट एवर वी आर पासिंग, अब हम इस इनपुट में जो भी पास कर रहे हैं वी आर सेविंग इन द एट्रीब्यूट. ओके, एट्रीब्यूट में हम सेव कर रहे हैं. यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? आई थिंक इट इज ओके बिकॉज यही चीज तो मल्टीपल टाइम्स वी हैव डन इट. फाइन. Our next step is create a event. I want to create a event. So for creating a event, we can go for file, new, and here same we have option lightning event. अभी इसके पहले हमने क्या बनाया था? lightning component. Now we have to build lightning event. Let's click on this lightning event and provide the event name is, let's take as custom event. Custom event. Custom event. Submit. Okay. So मैंने event बना दिया. And now that event will be component event. और event को हम कैसे close करेंगे? I want to close it like this. So here we have event. Description में कुछ भी डाल सकते हो आप. What? Want to send value from one component to another component. ताकि ये क्यों डाल दे डिस्क्रिप्शन में? ताकि देखने वाले कोई अगर दूसरा डेवलपर आता है ना उसको पता चल जाए कि आपने ये इवेंट को क्यों यूज किया है. सो वांट टू सेंड वैल्यू फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट. दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड दिस इवेंट. इनसाइड दिस इवेंट वी आर गोइंग टू यूज मैसेज एट्रीब्यूट और attribute name message and type will be same string. Right, our event is ready. Our event is ready. So what we are expecting, the second point, create a event. Inside the event we have to provide this message attribute. So this is also completed. Can you query anyone? Come on. यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? Yes or no? हमने सर चाइल्ड यहाँ कंपोनेंट बनाया, हमने इवेंट बनाया. सर यहाँ टाइप हमेशा कंपोनेंट रहेगा. हाँ, टाइप आपका दो टाइप के होते हैं, एप्लीकेशन इवेंट, एक कंपोनेंट इवेंट. बट 99% हमेशा कंपोनेंट इवेंट यूज करते हैं. क्यों? कि जब आप एप्लीकेशन इवेंट यूज करते हैं ना उसका प्रोपोगेशन बहुत ज्यादा होता है. सो इसका यूज क्या है कि आपको एक से दूसरे में भेजना होगा. सो वी हैव टू यूज कंपोनेंट इवेंट. लेकिन अगर आपको यहाँ से अगर आप चाहते हो कि आपके पास पेरेंट टू चाइल्ड, सॉरी चाइल्ड टू पेरेंट, देन ग्रैंड पेरेंट, देन उसके भी ग्रैंड पेरेंट है. सो बहुत ऊपर तक भेजना होता है ना, ग्रैंड पेरेंट की भी पेरेंट होता है, वहां तक भेजना है. देन वी हैव टू यूज द एप्लीकेशन इवेंट. सो वैसा रिक्वायरमेंट कभी आता ही नहीं है ऑनेस्टली. सो वैसे रिक्वायरमेंट कभी नहीं आते कि हमें एप्लीकेशन इवेंट यूज करना पड़े. सो ऑलवेज गो फॉर द कंपोनेंट इवेंट. ठीक है, चलो. नाउ अब मुझे क्या करना होगा, इस इवेंट को मुझे अपने कंपोनेंट में रजिस्टर करना होगा. जब तक ये इवेंट रजिस्टर नहीं होगा मैसेज एट्रीब्यूट यहां से वैल्यू को पिक नहीं कर सकता. सो फर्स्ट वी हैव टू रजिस्टर द इवेंट. सो फॉर रजिस्टरिंग द इवेंट व्हाट वी हैव टू यूज, we have to use aura register. So I can provide here what I want to register the event. So let's go aura register event. रिमेंबर ये आपको नया सीखने को मिल रहा है, ऑरा रजिस्टर इवेंट. एंड देन वी हैव टू प्रोवाइड द इवेंट नेम. कोई भी एक नाम रख सकते हैं. हम नाम रख दिया हमने क्या, सैंपल. लेट्स टेक सैंपल कस्टम, सैंपल कंपोनेंट इवेंट. फाइन. लेकिन ये जो हमने नाम रखा, किस इवेंट का नाम रखा है? इसका नाम रखा है. सो आई कैन प्रोवाइड हियर व्हाट, टाइप इक्वल टू, I can provide here C colon and what is the name of the event? Custom event, CUSTEVENT. मतलब कहने का क्या हुआ कि हमने जो इवेंट है उसको हमने रजिस्टर्ड किया किस नाम से? सैंपल कंपोनेंट इवेंट के नाम से रजिस्टर कर दिया.
किसी भी नाम से, any ABCD XYZ, any name you can take it. I have taken sample component event, you can take any name. So मैंने ये जो इवेंट है, इस इवेंट को इस कंपोनेंट इवेंट में, चाइल्ड कंपोनेंट इवेंट में यहाँ पे रजिस्टर कर दिया, किस नाम से? सैंपल कंपोनेंट इवेंट से। अब जैसे ही हमने इसको रजिस्टर किया, अब हमारे इवेंट के पास ये एडिशनल एक कैन से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि नाउ ही कैन पिक अप द वैल्यूज। जो भी आप वैल्यू पास करोगे यहाँ पे, आप वैल्यू फॉर सेंडिंग में, दैट वैल्यू, दैट इवेंट कैन पिक इट। Okay, so for registering an event, this syntax we have to write. So this is what here we have: registering an event in child component. That is also completed. Point number 3 is also completed. Guys, any query in point 1, 2 or 3? Come on, let me know. किसी को पूछना है? Point 1, 2 और 3 में किसी को? Anyone? No query? No, sir. हाँ या ना? No, Rahul. चलो। सो नाउ व्हाट आई एम सेंडिंग, कि अब जैसे ही मैं यहाँ बटन, जैसे ही यहाँ बटन, अब मैंने सपोज आई हैव गिवन द वैल्यू, और जैसे ही मैंने सेंड पे क्लिक किया, तो क्या करेगा वो इवेंट, क्या करेगा? मैसेज मैसेज एट्रीब्यूट क्या करेगा? इस वैल्यू को लेगा और फायर हो जाएगा। So on click of the send, we have to take the value and we have to fire the event. So let's go there. So handle, let's provide send. So inside handle send, we are going to write some logic. We are going to write some logic, like let's take here, I am going to take component dot get, और हम इस गेट, हम क्या करेंगे? इवेंट को गेट करेंगे, component dot get event. Inside that event we are going to provide the name of the component, कि आपने चाइल्ड में इस इवेंट को जिस नाम से रजिस्टर किया है वो नाम मुझे चाहिए, राइट? तो मैंने इवेंट को सैंपल कंपोनेंट इवेंट के नाम से रजिस्टर किया है, राइट? नाउ व्हेन आई गॉट दिस इवेंट, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, आई एम, जैसे ही मुझे इस इवेंट को गेट करूंगा ना, मुझे इस इवेंट के अंदर का एट्रीब्यूट भी मिल जाएगा, मैसेज एट्रीब्यूट, वेरिएबल, let's take here custom event, fine. So now we are going to use this custom, जैसे ही मैंने इस इवेंट को कॉल किया, गेट किया, जैसे इस इवेंट को कॉल किया, इसके अंदर के एट्रीब्यूट भी आ जाएंगे. सो आई कैन राइट हियर custom event dot set param, set params. अब इसके अंदर पैरामीटर कौन से हैं? कौन से पैरामीटर इसके अंदर है? सो इवेंट के अंदर कौन से पैरामीटर हमने लिया है? इवेंट के अंदर हमने लिया है मैसेज एट्रीब्यूट पैरामीटर. So that message attribute we can provide it, कि मुझे I have to provide message attribute, और उस message attribute में मुझे क्या provide करना है? जो भी value हम यहाँ UI से provide कर रहे हैं, इसको हमने read किया है ना, so that value we have read it here in value to send, and here it is. So I can use it here now. What? V dot this, and we have to use here what? Component dot get, and we can provide it. See guys, now see the syntax. यहाँ UI से जो हमने वैल्यू प्रोवाइड की है उसको लिया और उसको मैसेज एट्रीब्यूट में दे दिया, मतलब हमने मैसेज एट्रीब्यूट में असाइन कर दिया. अगेन आई एम आस्किंग, इफ यू हैव एनी क्वेरी लेट मी नो. किसी को कुछ पूछना है? सो हियर whatever the custom event we are getting, that जैसे ही हमने गेट किया ना, उसके अंदर क्या होता है, आपके कस्टम इवेंट के पैरामीटर्स भी चले आते हैं. तो उस पैरामीटर्स में जो भी मैसेज पैरामीटर, उसके अंदर हमने UI से whatever the value we are passing, we are setting it, and we have set it. So this is the third point, what? Assign values to message attribute, that is completed. क्या किया? वैल्यू को असाइन कर दिया हमने, जो भी वैल्यू हम UI से पास कर रहे हैं उसको हमने मैसेज एट्रीब्यूट में असाइन कर दिया. उसके बाद मुझे क्या करना है? नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डू फायर इवेंट. नेक्स्ट थिंग वी हैव टू फायर द इवेंट. सो जो भी इवेंट है वो किसके अंदर है? कस्ट इवेंट है. सो आई एम गोइंग टू यूज दिस डॉट फायर, मतलब हमने इवेंट को फायर कर दिया, मतलब यू कैन गो आउटसाइड नाउ. यू कैन टेक द वैल्यू, इस वैल्यू को मैंने मैसेज एट्रीब्यूट में दिया और मैंने उसको फायर कर दिया. सो जैसे ही मैंने फायर किया, नाउ
अभी वो इवेंट क्या करेगा, उस वैल्यू को लेकर के बाहर निकल जाएगा. इट विल फायर द इवेंट. एनी क्वेरी एनीवन टिल नाउ? यस और नो? So fire the event till here it is completed. Come on, let me know. Any query till now? See this controller and let me know if you have any query. No, sir. ठीक है, अब मैंने क्या किया, उसको फायर कर दिया. तो क्या हो गया यहाँ पे, इफ यू कैन गो ऑन द यूआई, वो यहाँ से मैसेज ने क्या लिया, इस यहाँ पे इट हैज नाउ कंटेन व्हाट, राहुल, राइट. बट अभी तक वो यहाँ पहुंचा नहीं है. अभी वो पेरेंट वो क्या हो गया, यहाँ से तो फायर हो गया, मतलब इट इज इन बिटवीन कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, बट अभी वो सेंटर में है, अभी वो पहुंचा नहीं है. सो लेट्स क्रिएट कंपोनेंट बी नाउ, पेरेंट कंपोनेंट. सो लेट्स क्रिएट वन मोर कंपोनेंट, न्यू, and component B. So I can provide here what? Parent CMP, I can enable this, interfaces, submit it. Fine. And I'm giving, let me provide here bold. I can provide, this is my parent component. Parent component. Fine. और यहाँ पे मुझे दिखाना है क्या? I can write a syntax value. Let me provide some break ताकि आपको, I want to show you. Fine. Value send from child component is, यहाँ पे मुझे दिखाना है value sent from child component is, and here I am going to provide some what, e dot, I think value from child. मैंने कैसे एट्रीब्यूट ले लिया, जैसे मैंने v डॉट लिया, उसके लिए मुझे क्या क्रिएट करना पड़ेगा, आई हैव टू क्रिएट ए एट्रीब्यूट. लेट्स क्रिएट aura attribute name. I can provide what, value from child. Why we are getting this red color? So this is my parent component. We have kept it into bold color, bold. Let me provide it in the bold. Sorry, it's in bold. Attribute, अच्छा वो उसके लिए आ रहा है B. Okay, got it. Sorry, इसलिए मैंने इसको नहीं दिया ना, that's why it is giving me. Everything is okay. मैं confused हो गया था. No worry, it's okay. Everything is okay. Fine. So, and here we have the type. String. फाइन. सो मैं क्या चाहता हूँ कि जो भी डेटा चाइल्ड से आ रहा है उसको मैं यहाँ पे शो करना चाहता हूँ. इसकी जरूरत नहीं आई थी. आई वॉन्ट टू शो इट हियर. ओके. सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमने स्टेप्स लिखा हुआ है दैट वी हैव टू क्रिएट पेरेंट कंपोनेंट. हमने क्रिएट तो कर दिया, कंप्लीटेड, बना तो दिया हमने पेरेंट. नाउ वी हैव टू हैंडल इवेंट इन पेरेंट कंपोनेंट. सो जो कंपोनेंट यहाँ रास्ते में है, यू कैन सी, जो भी कंपोनेंट ने, दैट कंपोनेंट हैज कंटेन्ड द वैल्यू राहुल. नाउ वी हैव टू हैंडल दिस इवेंट. अगर मुझे इसकी वैल्यू को यहाँ शो करना है तो मुझे इस इवेंट को हैंडल करना पड़ेगा पेरेंट कंपोनेंट में. सो हाउ वी कैन हैंडल इट? सो वी हैव टू यूज हियर व्हाट, aura, and then we have to use handler. It means I want to handle a event, so that's why we have to use aura handler. फाइन. कौन से इवेंट को आप हैंडल करना चाहते हो वही आपको नाम यहाँ देना होगा जो नाम आपने चाइल्ड में दिया है, सैंपल कंपोनेंट इवेंट. सेम कंपोनेंट आई वांट टू हैंडल इट, सैंपल कंपोनेंट इवेंट. ठीक है. जो भी आपने सैंपल कंपोनेंट इवेंट दिया, इस इवेंट का नाम क्या है? So that event name I have to provide it.
आई कैन प्रोवाइड सी कॉलन, नेम क्या इवेंट का, CUST, कस्ट इवेंट, इवेंट। फाइन। और जब आप इवेंट को हैंडल करोगे तो आप क्या करना चाहते हो, तो हमें शो करना है। शो करने के लिए एक्शन, इनसाइड एक्शन आई एम गोइंग टू प्रोवाइड सी डॉट शो वैल्यू, सी डॉट शो वैल्यू मतलब आप चाहते हो कि आपने इसको हैंडल किया है, हैंडल करने के बाद आप क्या करना चाहते हो, तो आई वांट टू शो द वैल्यू ऑन माय यूआई। Let's go on the show value in the controller of parent component, and here I am going to write for showing the value. Okay, chalo. Now for showing the value, what we need, so now we have handled the event, हमने event को handle कर दिया, और उस event के अंदर जो message attribute है, इस event के अंदर एक है message attribute, उसके अंदर डेटा अवेलेबल है, वैल्यू अवेलेबल है, उसको मुझे शो करना है। सो आई कैन गो फॉर शो दी वैल्यू, एंड यहाँ पे हम लेते हैं किसको, इवेंट को। सो आई कैन टेक हियर इवेंट डॉट गेट पैरम, इवेंट डॉट गेट पैरम, जो भी इवेंट मैंने हैंडल किया उसका मुझे पैरामीटर चाहिए। क्या है उसके पैरामीटर का नाम, इट्स पैरामीटर नेम इज मैसेज, यही उसके पैरामीटर का नाम। ये मुझे चाहिए कि इसके अंदर क्या वैल्यू है। आई कैन टेक इट हियर कि वेरिएबल वैल्यू फ्रॉम चाइल्ड, जो भी चाइल्ड से वैल्यू आ रहा है वो इसके मैसेज एट्रीब्यूट के अंदर है। तो मैंने उस वैल्यू को ले लिया, एंड दैट वैल्यू वी आर गोइंग टू सेट इट। यहाँ पे कंपोनेंट डॉट सेट, सेट करना है मुझे, यहाँ सेट करना है ना, वैल्यू फ्रॉम चाइल्ड। आई कैन प्रोवाइड वी डॉट दिस कॉमा वैल्यू फ्रॉम चाइल्ड, तो हमने यहाँ सेट कर दिया। दैट्स इट, फाइन। बट what I'm expecting, I want to merge this child component। अभी मेरे पास दो अलग अलग component है, component child component यहाँ है और parent component यहाँ है। So मैं क्या करता हूँ, ये जो child component ना, इसको मैं parent component में ही कॉल कर देता हूँ। Let me show you how we can call it। So I can provide here what, C colon, कभी भी आप पेरेंट मतलब एक कंपोनेंट में दूसरे कंपोनेंट को कॉल करना चाहते हो ना, सो यू हैव टू यूज सी कॉलन एंड नेम ऑफ द कंपोनेंट। व्हाट इज द नेम, चाइल्ड CMP, एंड क्लोज इट, child CMP। let me provide some break so you can see the differences। fine, now I am going to call this parent component। मैं इसको कॉल करता हूँ यहाँ पे। so for that let's edit the page, and let's call it parent component, and this I'm going to call it here। यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ ताकि आपको डिफरेंस दिखे। फाइन, सेव्ड, कम बैक। नाउ सी, मैंने क्या किया, पेरेंट कंपोनेंट के अंदर ही मैंने ये चाइल्ड, दिस इज माय चाइल्ड कंपोनेंट जिसका आपका ये इनपुट फील्ड है और सेंड बटन है, और यहाँ पे है दिस इज माय पेरेंट कंपोनेंट जहाँ पे वैल्यू सेंड फ्रॉम द चाइल्ड कंपोनेंट इज हियर। नाउ if I'm providing any value here something, and if I click on the send, I'm getting here value। if you want to make it bold also, you can make it bold। you want to, if you want to show colorful, you can also show it। okay, got it। So here we have, now whatever value we are passing, send it, and this parent दूसरे कंपोनेंट, एक कंपोनेंट से हमने वैल्यू को भेजा, दूसरे कंपोनेंट ने गेट किया। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको अलग अलग करना है। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन प्रोवाइड टू कार्ड्स। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, रखते हैं एक कार्ड में। लेट्स प्रोवाइड हियर लाइटनिंग कार्ड।
Save it. See on the UI. ये आपके अलग कार्ड में हो गया और इसको मुझे एक अलग कार्ड में रखना है. Fine. So I can go and I can keep it in a separate card. So I can take one more lightning card. Maybe अगर हम इन्हें यही ले लिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. Lightning card. Save it. Now go to the UI, refresh it. तो ये मेरा चाइल्ड कंपोनेंट हो गया, ये मेरा पेरेंट कंपोनेंट, दो अलग अलग कंपोनेंट हो गए. अब मैंने यहाँ से वैल्यू कुछ प्रोवाइड की, क्लिक ऑन सेंड बटन एंड यू आर गेटिंग हियर. Fine. So whatever value we are passing, Rahul, if you click on the send, that second component is getting. This is what how we can transfer one component data to another component. So through event we can pass it. अब इसका कोई यूज नहीं है. You can remove it now. Edit page. And you can go that, save it. Go back and see here. Here is your functionality. Here we have one component, here we have another component. So आप जो भी डेटा पास करोगे, it will be transferred in the second. जैसे आप एक वैल्यू पास करो वैसे आप मल्टीपल वैल्यूज पास कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है. Guys, now over to you. Let me know if you have any query. ये सारे के सारे जो स्टेप्स है हमने फॉलो कर लिए हैं एंड सेम स्टेप्स जो हमने फॉलो किए हैं, we are getting result. Guys, that's what I'm saying that कि ये 8 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है और यही स्टेप्स है जो फॉलो किए जाते हैं whenever you want to transfer data from one component to another component. चलो, over to you guys. Anyone has any query? Come on, yes or no? कुछ पूछना है यहाँ तक? Anyone? Come on, yes or no? Dipali, Shrikant, Sneha, No, Subham. Rahul. So this No, is sir. what. No, sir. So यही आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पेजेस है जो मैं आपको हालांकि डेवलपमेंट की कोई लिमिट नहीं होती, बहुत सारे पेज होते हैं. बट अगर आपको ये सारे पेज पता है ना तो आप इसके अलावा कैसा भी पेज हो, चाहे आपका इमेज से रिलेटेड हो या आपके वीडियो से रिलेटेड हो या आपको डेटा टेबल से रिलेटेड हो या आपके इनपुट फील्ड्स हो, नाउ यू कैन बिल्ड इट बिकॉज सेम कॉन्सेप्ट वी हैव टू फॉलो, चाहे पेज कितना बड़ा भी हो कितना लंबा क्यों नहीं हो, यही आपको सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करना है एंड देन यू कैन बिल्ड द पेजेस. और आप अभी और हमने जितने भी पेजेस पढ़े हैं दे ऑल आर इंटरव्यू रिलेटेड पेजेस. यही सारे पेजेस को आप अपने इंटरव्यूज में एक्सप्लेन करोगे बिकॉज यही सारे पेजेस यूज होते हैं. मोस्टली आप किसी भी प्रोडक्ट में जाओगे ना, चाहे सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड, मार्केटिंग क्लाउड, यही सारे पेजेस आपको रिपीटेडली यूज होते हैं. सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि जितने भी हमने एग्जांपल देखे दे ऑल आर इंपॉर्टेंट. ओके, चलो. एनी क्वेरी एनीवन? दिस इज व्हाट वी हैव लाइटनिंग कंपोनेंट जो हम लास्ट 2 वीक से पढ़ रहे थे. Now we are moving to trigger. Trigger is also a coding area. So that we are going to start. And trigger is most important. Matlab it is more important than lightning component. Right? So now we are going to see how we can write trigger in Salesforce and what is the use of writing a trigger in Salesforce. So first let me know if you don't have any question, don't have any confusion, we'll go ahead. Everyone. आगे बढ़े? Yes or no?
मुकेश सर डेट के लिए कोडिंग करना था सर। डेट डिसेबल के लिए, हाँ आप सॉरी सॉरी मैं आपको बताना भूल गया। डेट डिसेबल इन ऑरा कंपोनेंट। आप खुद से आपने कभी सर्च नहीं किया? सर्च करें तो आपको मिल ही जाते हैं। सी रिस्ट्रिक्ट पास डेट, आप यहाँ जाओगे आपको कोड मिल जाएगा। अब आप इतने कैपेबल हो कि खुद से कोड सर्च कर सकते हो। सी इफ यू कैन गो देयर, यहाँ पे इसने यूज किया थी ऑल्टर टुडेज डेट, इसको आप यूज करो 2 यूनिट में जाके। न्यू डेट, टुडेज डेट। तो यहाँ पे दिखाया इन्होंने। अब आपको क्या करना है, अब आपको अलग अलग ब्लॉक्स पे जाके, आपके पास आपका बेसिक सब क्लियर हो चुका है, अलग अलग ब्लॉक्स पे जाओगे और वहां से जाके आप चेक कर लोगे। बहुत से कोड दिए हुए हैं, हालांकि ऐसे रिक्वायरमेंट बहुत कम आते हैं, बट यू कैन गो देयर। सी यहाँ पे यहाँ दिखाया ना इसने, इसने सो यू कैन सी द इमेज, इसने जो बताया है, एंड यू कैन कॉपी दिस कोड। बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे, आप इफ यू कैन गो ऑन द। आपको मैं एक बेस्ट एग्जांपल जो इजी में होगा मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। मुझे एग्जैक्टली याद ही नहीं आया। आई थिंक ऐसे ये तो बंद हो गया आई थिंक वेबसाइट। राइट, बिकॉज हमें उसके लिए थोड़ा सा जे क्वेरी को इंसर्ट करना पड़ेगा। जे क्वेरी फॉर डेट डिसेबल। यही आपको जे क्वेरी को यूज करना पड़ेगा आपको अपने कोड में। डोंट वरी, इसका कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो आई विल गिव ओके यू द सर कोड, एज उसको अ आप एज इट इज मेंशन करोगे ना, सो यू कैन गेट इट। यस, हाँ टेल मी। सर एज अ डेवलपर तो हम कोडिंग का यूज कर सकते हैं, लेकिन एज अ ये एडमिन तो यूआई में कर सकते हैं क्या सर, यूआई में? वैलिडेशन मेथड से। सर डेट के डेट लिए? रेस्ट्रिक्ट। यस सर। नहीं, अभी क्या है ना कि अगर आप यूआई से के थ्रू करोगे ना, तो अभी आप अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रीवियस डेट को डिसेबल करना चाहते हैं, बट आपको आपको प्रीवियस के सारे डेट्स को करना है डिसेबल ना। तो उसके लिए हमें डिसेबल करना मतलब क्या होता है कि वो इसको चूज ही ना कर पाए। दो चीज होता है, एक तो मैंने प्रीवियस, सपोज अगर मैंने प्रीवियस डेज को चूज किया, सेव पे क्लिक किया तो एरर आ जाए। और एक होता है कि नहीं, प्रीवियस डेज को प्रीवियस डेट को चूज करने का ऑप्शन ही ना आए, डिसेबल हो जाए। दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। एक होता है कि प्रीवियस डेट को मैं सेलेक्ट कर सकता हूं, लेकिन जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया तो एरर आ जाएगा दैट यू कैन नॉट सेलेक्ट प्रीवियस डेट। और दूसरा क्या होता है कि मैंने प्रीवियस डेट को डिसेबल ही कर दिया कि आप सेलेक्ट ही नहीं कर सकते हो। सो अगर आप डिसेबल करना चाहते हो तो दैट वी हैव टू यूज jQuery। लेकिन अगर आप केवल चाहते हो कि नहीं, जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूं तो एरर आ जाए कि प्रीवियस डेट इज नॉट अलाउड, सो उस केस में वी कैन यूज वैलिडेशन रूल। ओके। ओके सर। हाँ, तो अगर आपको डिसेबल करना है, जैसे जैसे इसने डिसेबल किया हुआ है, इसको आप सेलेक्ट ही नहीं कर सकते। तो डिसेबल करने के लिए आपको jQuery यूज करना पड़ेगा। अगर आपको सेलेक्ट कर पाओ, लेकिन आप जैसे ही सेव पे क्लिक करो आपको एरर आ जाए, तो उसके लिए वी कैन यूज वैलिडेशन और वी कैन यूज ट्रिगर ऑल्सो, जो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, चलो कोई नहीं, मैं आपको ये इसका भी कोड दे दूंगा डिसेबल करने का, और मैं आपको वैलिडेशन रूल भी बता दूंगा जो ट्रिगर में हम यूज करेंगे कि हाउ वी कैन प्रोवाइड एरर मैसेज व्हेन द यूजर इज सिलेक्टिंग पास्ट डेट। ओके, ओके सर। चलो। Now, next thing we are going to learn is trigger, and trigger is the most important topic in Salesforce development। जैसे हमारे एडमिन में सबसे important topic कौन सा है? सिक्योरिटी मॉडल। अगर आपके सारे टॉपिक्स क्लियर है और सिक्योरिटी मॉडल क्लियर नहीं है एडमिन में, डेफिनेटली कोई भी कंपनी आपको हायर नहीं करेगी। एग्जैक्टली सेम अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हो, तो ट्रिगर विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज ट्रिगर से ही रिलेटेड है आपका एपेक्स, ठीक है ना। सो अगर आपको, बिकॉज ये सब जानते हैं कि अगर आप ट्रिगर कर पाते हो इट मीन्स यू कैन डू एपेक्स, बिकॉज देयर कोड्स आर सिमिलर। आप देखा 60 to 70% कोड्स आर सिमिलर इन ट्रिगर्स एज वेल एज एपेक्स।
So that we are going to learn it. So let's go and start triggers. पहली बात तो ट्रिगर्स होता क्या है और इसको लिखते क्यों है इन Salesforce. So first thing we have to know that trigger is also a automation process. Trigger is also a automation process similar to what? Similar to कौन कौन से हमारे पास automation process? Anyone can remind me? Similar to कौन कौन से automation process है हमारे पास? Come on, I think आप admin practice नहीं कर रहे हो. What are the additional automation process we have? Workflow rule, process builder, approval process, lead or case assignment, right? So these are the automation process we have जो हमने already पढ़ लिया है जिसको आप भूल रहे हो. So guys, please revise all the topics. Admin के सारे topics को revise करो. Fine. But difference क्या है? डिफरेंस ये है कि वर्कफ्लो रूल, प्रोसेस बिल्डर, अप्रूवल प्रोसेस, असाइनमेंट रूल, ये सब के सब एडमिन रिलेटेड टॉपिक है. मतलब इसमें हमें कोडिंग करने की जरूरत नहीं है. बट समटाइम्स वी हैव सच टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट, सच टाइप ऑफ कंडीशंस जो कि हम इनके थ्रू अचीव नहीं कर सकते. सो इन दैट केस वी आर गोइंग टू राइट कोड. And whenever we have to write automation code in Salesforce, then the only example we have is triggers. Trigger is also a automation process, but you can say it's a coding automation process. आपको कोड लिख करके वो automation process को डिजाइन करना पड़ेगा. Okay, now there are two types of triggers. First क्या है आपका before trigger, second है आपके after trigger. पहला है आपका before trigger, दूसरा है आपका after trigger. So what is before trigger, what is after trigger? Fine, I will tell you, don't worry. Further is before trigger को divide किया गया है. Here we have before insert, sorry, before update, before delete. Fine. और इस after trigger को again we are going more with after insert, after update, after delete, and we have one more thing, after undelete and delete option. Okay, so these are known as context variables. These are known as events inside the trigger. इसको और इसको दोनों को हम क्या बोलते हैं? They are known as events in trigger. Events in triggers. इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? Events in trigger. So whenever we are going to write a trigger, the first step we have to decide कि हमें कौन सा event provide करना है. Unless and until we are not providing any event ना, our trigger will not execute. हमारा trigger execute ही नहीं होगा. Execute क्या होगा? आपका trigger save ही नहीं होगा. अगर आपने events को provide नहीं किया, so your trigger code will not be saved. It will give you error message. अब बात आती है, what is before trigger, what is after trigger? Fine. So before trigger is a trigger whenever data will be saved. Let's take practically. If I will go to a contact, fine. अगर मैंने जैसे ही न्यू पे क्लिक किया, आई कैन फिल ऑल दिस डिटेल्स एंड व्हेन आई क्लिक ऑन द सेव बटन, सो क्या होता है? अगर मैं सेव पे क्लिक करूं तो क्या होता है? एवरीवन कैन यू प्लीज स्पीक? अगर मैं सेव पे क्लिक करूं, व्हाट डज इट मींस? Insert. इंसर्ट. बट व्हाट आई एम सेइंग कि जब आप सेव पे क्लिक करते हैं ना, इट विल टेक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ऑफ टाइम टू सेव द डेटा. कुछ सेकेंड्स के टाइम लेता है वो डेटा सेव होने में.
सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि उस जब वो सेव हो रहा होता है उसके जस्ट पहले, इफ आई वांट टू मॉडिफाई समथिंग, इफ आई वांट टू डू समथिंग, इफ आई वांट टू राइट सम अनदर लॉजिक, so that logic we have to write in before insert. Remember, जब भी हम डेटा को सेव करते हैं और सेव करने से जस्ट पहले, if you want to write some logic and that logic has to be executed, that logic we are going to write in before trigger. Fine. Next thing, when I click on the save button, the data will be saved. और मैं जैसे ही डेटा सेव हो जाए, so सेव होने के फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के बाद, if I want to write a logic that can be executed after saving the data, so that logic we are going to write inside after trigger. So two things here we have, before trigger, after trigger. बिफोर ट्रिगर में हम वो लॉजिक लिखते हैं जो हम चाहते हैं कि डेटा जस्ट सेव होने से पहले what logic I want to execute. Fine. After trigger क्या होता है, I want to write a logic जैसे ही डेटा सेव हो जाए उसके बाद, लेट्स से उसके बाद मुझे ईमेल सेंड करना है, या उसके बाद मुझे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के फील्ड को अपडेट करना है, जैसे रिकॉर्ड सेव हो गया. सो इन दैट केस वी आर गोइंग टू यूज आफ्टर ट्रिगर. Guys, everyone is clear what is before trigger and after? Because this is an interview question they used to ask. What is difference between before trigger and after trigger? Come on. Is it clear, everyone? Yes or no? Yes or no? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Fine. So and all this, whatever we have before trigger, like before insert, before update, before delete, after insert, after update, after delete, after delete, they are known as events inside trigger. इसको हम क्या बोलते हैं? Events inside trigger. अब एक दूसरी चीज है, कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल. ये भी बहुत पूछते हैं इंटरव्यूज में. व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल इन ट्रिगर्स? व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल इन ट्रिगर्स? अभी आप देखो बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल है, लाइक is executing, is insert, is update, is delete, is before, is after, new map, old map. Fine, बहुत सारे. If you can go in the Google also, now you can get it. What? Context variables in triggers. Is before, is after, is on delete, right? These all are the context variable. Not this one. Where is Salesforce? Yes, here we have Salesforce. See, is executing, is insert, is update, is delete, is before, is after, is on delete, new map, old map, right? So these all are the context variable जो मैंने यहाँ लिखा है. लेकिन इसका यूज क्या है? They used to ask in interview, what is the use of, what is context variable and what is its use in trigger? इनका यूज क्या है? फाइन. सो इसका यूज मैं आपको अगर थ्योरेटिकली बताऊंगा तो आपको क्लियर नहीं होगा. दैट देयर यूज वी आर गोइंग टू सी प्रैक्टिकली. अभी के लिए आपको बस इतना जानना है, द यूज ऑफ कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल इज टू सपोर्ट इवेंट्स. इवेंट्स कौन है यहाँ पे? ये इवेंट्स हैं. टू सपोर्ट इवेंट्स फॉर डिफरेंशिएटिंग द लॉजिक्स. ये क्या करता है? आपका कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल हमेशा सपोर्ट प्रोवाइड करता है इवेंट्स को, ताकि लॉजिक्स को डिफरेंशिएट कर पाए, लॉजिक को डिवाइड कर पाए. सो दैट सपोर्ट विल प्रोवाइड द कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल. अब ये सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करता है, डोंट वरी, विल सी प्रैक्टिकली. वो आपको प्रैक्टिकली ज्यादा क्लियर होगा. सो अभी के लिए बस आपको इतना याद रखना है कि व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल. सो कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल विल सपोर्ट इवेंट्स फॉर डिफरेंशिएटिंग द लॉजिक्स. और वो कैसे प्रोवाइड करता है, दैट वी आर गोइंग टू सी इन कोड. हम कोड पे देखेंगे कि आखिर हम इसको यूज करेंगे
और कैसे ये कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल इट विल प्रोवाइड द सपोर्ट टू द इवेंट्स एंड द इवेंट विल बी एग्जीक्यूटेड with different logics. Everyone, is it clear? Yes or no? Come on, yes or no? So this is Yes, sir. this is all the technical terms that we have to learn in trigger. Now next thing is what we are going to start. Trigger coding. But before starting, I want to show you something. We have something in trigger is new. Trigger dot new. We have trigger dot old. We have trigger dot new map. We have trigger dot old map. ये सब है क्या, इनका यूज क्या होगा? अगर हम इनको यूज, ये आपको एपेक्स में नहीं मिलेगा. दिस इज ओनली एप्लीकेबल इन ट्रिगर. ट्रिगर डॉट न्यू, ट्रिगर डॉट ओल्ड, ट्रिगर डॉट न्यू मैप, ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप. इनका यूज क्या है? डोंट वरी, आई विल लेट यू नो. अभी हम आज कोडिंग नहीं कर रहे हैं, आज हम ओवरऑल ट्रिगर्स के बारे में देख रहे हैं कि हम क्या क्या यूज करने वाले हैं कल से कोडिंग. फाइन. So let me open a developer console, debug anonymous window. So suppose if I am expecting a record, मैं चाहता हूं कि whatever record, suppose this is a record I have, right? This record, contact Rahul. अगर मुझे इस रिकॉर्ड के डिटेल्स चाहिए, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अकाउंट नंबर, टाइटल, डिपार्टमेंट, बर्थ डेट, हमें कैसे मिलेगा? एनीवन? इफ आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे उस रिकॉर्ड के सारे डिटेल चाहिए, हाउ कैन आई गेट इट in code? We have already done it, I think you know. Through the If I want software query. SQL query, so can you give me the syntax, please? If you are practicing, you can provide syntax. Come on. I can provide select ID, maybe first name, last name, first name, last name, or maybe mobile number, maybe email, maybe you can say address. Right, we can provide it from contact where id equals to, and then I'm going to provide the id. इस रिकॉर्ड की मैं आईडी प्रोवाइड कर दूंगा, राइट? सो गाइस, लेट मी नो, इज इट करेक्ट और रॉन्ग? पहले तो मुझे ये बताओ, ये सही है या गलत है? एवरीवन, इज इट करेक्ट और रॉन्ग? कम ऑन, यस. ये गलत है या सही है? Correct or wrong? करेक्ट है. नाउ Yes, yes. अब ट्रिगर लिखने का फायदा क्या है? अभी मैंने, अगर मुझे कोई रिकॉर्ड चाहिए, जो भी रिकॉर्ड मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, जो भी, सो उसको, उसके अगर मुझे डिटेल चाहिए, आई हैव टू राइट सेलेक्ट आईडी, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल, ईमेल एड्रेस, व्हाटएवर, जितने भी मुझे फील्ड चाहिए, आई हैव टू राइट द फील्ड, ऑल फील्ड नेम्स, मेलिंग एड्रेस, लीड सोर्स, बर्थ डेट, असिस्टेंट, राइट, अदर एड्रेस, लेवल, एवरीथिंग वी हैव टू इंक्लूड इन आवर SQL query. But the advantage of trigger is that अगर यही चीज मुझे ट्रिगर में चाहिए होगा ना, so what I will write, list of contact on list. अगर मैंने बस लिख दिया क्या, ट्रिगर डॉट न्यू, दैट इज सफिशिएंट. जैसे ही मैंने ट्रिगर डॉट न्यू लिखा, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आप रिकॉर्ड प्रोसेस कर रहे हो, उस रिकॉर्ड के सारे डिटेल्स, अकाउंट नेम, टाइटल, डिपार्टमेंट, बर्थ रेट, मोबाइल, फोन, फैक्स, ईमेल, एवरीथिंग विल बी कैप्चर्ड इनसाइड कॉन लिस्ट. सो अभी आपने जो इतना लंबा सा ये SQL क्वेरी लिखा ना, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन ट्रिगर. बस एक ट्रिगर डॉट न्यू से यू कैन गेट द डेटा. दैट इज वाई, दिस इज वाई वी हैव टू राइट ट्रिगर इन Salesforce.
Okay, no need to write this SQL query. And we are writing just trigger.new and it will be executed. Don't worry, we'll see practically कि अगर हमने SQL query लिखा और हमने trigger.new लिखा, what data we are getting, that we are going to see step by step. Okay, now अब मैं आपसे एक चीज और पूछता हूँ, आप मुझे बताना. So अगर मैंने यहाँ से फोन नंबर चेंज कर दिया, आई एम currently let's take this is the phone number. I am updating this phone number something 66666. Save it. क्या हुआ? अपडेट नहीं हुआ क्या? अपडेटेड 6. नाउ अब मैं आपसे पूछूं कि विथ कोड मुझे निकालना है कि प्रीवियस फोन नंबर क्या था. राइट, अभी तो मैंने फोन नंबर अपडेट कर दिया, प्रीवियस जो भी फोन नंबर था उसको मैंने अपडेट कर दिया. अब मेरे पास प्रीवियस फोन नंबर तो नहीं है. सो हियर आई एम एक्सपेक्टिंग कि हाउ कैन आई गेट प्रीवियस फोन नंबर. जो फोन नंबर पहले मैंने सेव किया था उसके मुझे डिटेल चाहिए, कौन सा फोन नंबर था. हाउ कैन आई गेट इट विद कोड? एनीवन? मुझे प्रीवियस फोन नंबर निकालना है जो मैंने अपडेट कर दिया. दैट इज नॉट पॉसिबल विद दिस, but that is possible with trigger. I can go and I can write list of contact con list equal to trigger डॉट ओल्ड. जैसे ही मैं ओल्ड यूज करूंगा ना, तो ये इसके पहले के क्या रिकॉर्ड थे इट विल गिव मी. कि अभी आपने जो रिकॉर्ड सेव किया, ये नहीं, इसके पहले जो भी रिकॉर्ड था, वॉट एवर द रिकॉर्ड इट वॉज, वॉट एवर द फोन वॉज देयर प्रीवियसली, it will give me the data. See how interesting this trigger is. That's why I am saying that trigger is the most important topic in Salesforce development. बिकॉज ट्रिगर से हम वो सब चीज कर सकते हैं जो हम बहुत सारी चीजें एपेक्स के कोडिंग से नहीं कर सकते. ओके, सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज ट्रिगर डॉट ओल्ड. सो डोंट वरी, अभी तो मैंने जस्ट आपको छोटी छोटी चीज बातें बताई है ट्रिगर के बारे में. फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू सी ईच एंड एवरी कोडिंग अबाउट ट्रिगर्स. चलो, यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन, लेट मी नो एवरीवन. Neha, Lisha, Subham, Dipali, anyone? No, sir. Okay, so let's meet tomorrow, and tomorrow we are going to start triggers logic. How we can write triggers logic and how it will be executed, and how we can see the expected result. Okay, ओके can सर you एक get क्वेश्चन. anyone? हाँ, सर सॉकवेल में स्टार नहीं यूज होता है क्या? नहीं, स्टार नहीं यूज होता है. इन सॉकवेल वी कैन नॉट यूज स्टार, बिकॉज स्टार आपको एसक्यूएल में यूज होता है. यहाँ पे आपको जो जो फील्ड्स चाहिए, दैट नेम्स यू हैव टू प्रोवाइड इट. ओके, और एक आई थिंक सेल्सफोर्स ने रिसेंटली कुछ लॉन्च किया था, आई थिंक ऑल करके, लेट मी चेक. गेटिंग ऑल फील्ड्स इन सॉकवेल, आई थिंक सेल्सफोर्स ने लॉन्च किया है कुछ उसके लिए, बिकॉज ये रिक्वायरमेंट बहुत दिन से चल रहा है कि अगर सारे फील्ड्स चाहिए ना, तो आई थिंक फील्ड्स, लेट मी चेक. हाँ, आई थिंक दिस फील्ड ऑल, मैंने कहा ना ऑल करके कुछ आया है, सेल्सफोर्स ने लॉन्च किया था. Yes, I think we have to use fields all instead of star. We have to use fields all. So आपको सारे fields आ जाएंगे. ठीक है, ये Salesforce ने लॉन्च किया. आई थिंक ये आपको जस्ट 6 months बिफोर या 8 months बिफोर Salesforce has launched this. So आप स्टार तो नहीं यूज कर सकते, बट यू कैन यूज fields and then we have to provide all. Got it? यस. हाँ, तो ये सिंटेक्स आप यूज कर सकते हो. ठीक, यहाँ पे इसने यूज किया फील्ड कस्टम प्रोवाइड करो, तो कस्टम फील्ड आपको आएंगे. केवल कस्टम फील्ड्स आएंगे जो आपने कस्टम बनाए हैं. जैसे अकाउंट में अकाउंट स्टैंडर्ड फील्ड्स है, अकाउंट में कुछ फील्ड्स आपने कस्टम बनाए होंगे, सो दैट कस्टम फील्ड्स विल बी विजिबल. अगर आप ऑल करते हो तो सारे फील्ड्स आ जाएंगे. फाइन. सो यहाँ पे दिया इसने ऑल स्टैंडर्ड कस्टम. आपको कौन से फील्ड्स आपको सॉकवेल क्वेरी में चाहिए. ऑल करोगे तो इसमें आपके दोनों आ जाएंगे, स्टैंडर्ड एंड कस्टम. केवल कस्टम करोगे आप तो केवल कस्टम फील्ड दिखेंगे, सी अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी.
और आप स्टैंडर्ड करोगे तो सारे स्टैंडर्ड फील्ड्स आ जाएंगे। ये आपको कब आया था? स्प्रिंग 21 में आया था ये, लास्ट ईयर, मतलब वही 8 मंथ बिफोर। गॉट इट? किसने पूछा था? क्लियर है? हाँ सर, यस। चलो, वेरी गुड। हाँ, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रिगर्स। सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू सी ट्रिगर लॉजिक्स। एनी क्वेरी? सर ये ट्रिगर एडमिन का ही पार्ट है या इट्स नहीं, इट्स अ डेवलपमेंट पार्ट। अभी हम इसमें पूरे कोड करेंगे, अभी तो हमने बस थोड़ा सा थ्योरेटिकल देखा है। वी आर गोइंग टू राइट कोड, सो इट्स अ डेवलपमेंट पार्ट। तो सर एडमिन सर्टिफिकेशन के लिए ट्रिगर्स की जरूरत नहीं है क्या? नहीं, एडमिन में आई थिंक ट्रिगर्स की जरूरत नहीं है, ट्रिगर्स नहीं पूछते। ट्रिगर, एपेक्स, लाइटनिंग कंपोनेंट, बैच क्लासेस जो हम पढ़ेंगे, ये सब डेवलपमेंट का पार्ट है, PD1 प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट पार्ट। ओके, तो अभी हम एडमिन सर्टिफिकेशन के लिए जा सकते हैं क्या? जा सकते हो, बट आई एम सेइंग दैट कि आप उसके लिए आपको 17 की पे करना पड़ेगा। व्हाई अननेसेसरी यू आर पेइंग फ्रॉम योर पॉकेट? इससे अच्छा है कि नॉलेज लेके पहले आप एक कंपनी में चले जाओ, वहां सर्टिफिकेशन करो, ताकि आपको 17,000 रिफंड हो जाते हैं जो कंपनी करवाती है। ओके। ठीक है, बट अगर आप चाहो तो आप जा सकते हो, अगर आपको खुद से ही करना है सो यू कैन गो फॉर दैट एडमिन सर्टिफिकेशन का। एडमिन के लिए पहले आपको क्या करते हैं, 1-2 साल के डम्प्स पढ़ने पड़ते हैं, बिकॉज डम्प्स में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वही सेम क्वेश्चंस मैच हो जाते हैं। सो यू हैव टू रीड एटलीस्ट 200 क्वेश्चंस, उसी 200 में से 50 क्वेश्चंस चले आते हैं एकदम सेम टू सेम विद ऑप्शंस। ओके, चलो, और कुछ पूछना है एवरीवन? नो क्वेरी? चलो ठीक है, लेट्स मीट टुमारो, विल सी द ट्रिगर्स लॉजिक। थैंक्स ऑल देन। Thank you, Rahul. थैंक यू। या, बाय।